ہم اپنا ایک مینٹل اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں. سینیٹائزر ہمارے بیگ میں بھی ہے. جس دن موت آنی ہے وہ برحق ہے. اندر تو آپ کے سامنے سارے ایک ساتھ پھر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ مل کے پیپر کی تیاری کر سکیں. اور بچوں کی وجہ سے نکلے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے بچے بور ہو رہے ہیں. ناظرین پاور 47 ٹی وی کی اسکرین سے میں ہوں آپ کا میزبان حماد حسین عباسی. ناظرین کورونا وائرس کی وبا کے دن جو ہے تو جاری ہیں. پاکستان میں اس کے کیسز کے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہیں. آج جہاں پر لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو ہے تو پارکوں کا رخ کی ہے. عوام اپنے جو ہے تو بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے تو یہاں پر آئی ہے. یہاں پر ہم مختلف لوگوں سے جہاں پر بات کریں گے کہ کورونا کی وبا کے دوران ان دنوں میں جہاں پر پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو ہے تو کورونا کی وجہ سے کافی اموات ہو چکی ہیں, کافی کیسز بڑھ چکے ہیں. وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اپنی اور فزیکل ہیلتھ کے لیے وہ پارکوں کا رخ کر رہے ہیں. کیا وہ ایسی ایکٹیویٹی گھروں میں رہ کر نہیں کر سکتے تھے, کیا ان کا پارکوں میں آنا ضروری تھا؟ تو مختلف یہاں پر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا. فیصل بخاری. اچھا بھائی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ہمراہ یہاں پر پارک میں آئے ہیں, کیا ایسی ضرورت تھی وبا کے دوران کے کیسز پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈیتھ ریشو پاکستان میں کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو ایسی کیا کوئی ضرورت تھی کہ آپ اپنے بچوں کے ہمراہ پارکوں کا آپ نے رخ کیا ہے؟ بات یہ کہ گھر میں بند رہ کے بچے بھی تنگ آ گئے, انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. ہمیشہ لاک ڈاؤن چل بھی نہیں سکتا. ضروریات زندگی اور انسان کی نفسیات ایسی ہیں کہ ہم سوشل اینیملز ہیں. وی ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ. تو ہم کوشش کریں بچوں کو ماسک وغیرہ دیکھیں بنائے ہوئے, خود بھی ڈبل ماسک کیے ہوئے. تو جتنا ہم پریکاشن لے کر باہر آ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوا لینی ہے, کچھ نہ کچھ تو انٹرٹینمنٹ لینا ہے. تو اس لیے اچھا, میں یہاں پر کوشچن کروں گا کہ مینٹل ہیلتھ کتنی کو ضروری تھی یہاں پر, خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے, کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے جو ہے تو عوام آئسولیشن کا اور کوارنٹائن کا شکار ہے, عوام اپنے گھروں میں محصور ہے. ویسے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے ناطے ہم مینٹل ڈپریشن اور سائیکالوجیکل پرابلمس پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بڑھ ہی رہے ہیں. تو اس میں تو پوری دنیا میں پرابلم آ گیا ہے, ایوری بڈی از گوئنگ تھرو دیٹ. تو ایسے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو باہر نکل کے انٹرٹینمنٹ کرنا ہے. پاکستان میں انٹرٹینمنٹ نام کے اوپر یہاں لوگ باہر نکل کے کھا لیتے ہیں یا بچوں کو لا کے پارک میں بیٹھ جاتے ہیں, اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. تو وی آل نیڈ سم فریش ایئر ٹو بریتھ, اور ذہن کی خوراک بھی ہوتی ہے. انسان باہر نکلتا ہے, تھوڑی ہوا لیتا ہے. گھروں میں بیٹھ کے سبھی فرسٹریٹ ہوئے ہیں. ایسی فیملیز جو کہ اپنے گھروں میں محصور ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اس کے وبا کی وجہ سے, ان کو اب کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے جو ہے تو بڑھا سکتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کے تھرو؟ اسٹے ہیپی, بی پازیٹیو, اور کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. یہ ایک طرح سے اچھا موقع بھی مل گیا کہ ہم لوگوں کو کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا گھر میں بیٹھنے کا, اور بچوں کے ساتھ اب ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی بچوں کے بارے میں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کے باوجود بچوں سے کاروبار اور روزگار کے سلسلے میں اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جان پہچان نہیں پاتے. تو آئی گیس کہ سب کو گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو تھوڑا پیشنس لیول بڑھائیں, اور اسٹریس تو ہے ہی ہے. سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیے گا. عمر نام ہے میرا. عمر, یہاں پر آپ موجود ہیں, ہم نے دیکھا کہ آپ کے گروپ فیلو جو ہے تو اس گروپ اسٹڈی کے لیے, آن لائن کلاسز کے لیے, آن لائن پیپرز کے لیے مصروف ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی یہاں پر گروپ اسٹڈی کے لیے آئیں, یا کچھ ایسی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی, یا ایسی اسٹریس جو ہے تو فری ہونے کے لیے بھی؟ ظاہر ہے گروپ اسٹڈی کے لیے آئے سارے, کیونکہ اب اس طرح ہوتا ہے کہ اب ہمارے گروپ کے اندر اس طرح ہوتا ہے, گروپ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹی کے اندر. اب اس طرح بھی نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کا گروپ ہے. لڑکوں کا گروپ ہے تو پھر ٹینشن نہیں, گھر میں چلے گئے. اب جب لڑکیاں بھی ظاہر ہے ان کے ماں باپ کو بھی فکر ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے سامنے یعنی کہ پارک کے اندر آ گئے, سب کو پتہ ہے کوئی یعنی کہ بالکل سامنے اسٹڈیز ہی ہو رہی ہے, تو اس میں ٹینشن نہیں ہوتی. یعنی کہ لڑکیاں ہیں اور سامنے ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا عمر, حکومت کی جانب سے SOPs دیے گئے تھے تاکہ اس وبا کو جو ہے تو پھیلنے سے روکا جا سکے. آپ پارک میں انٹر ہوئے تو آپ نے کتنا کچھ انتظامیہ کی جانب سے دیکھا کہ جو ہے تو SOP جو تھی پارک میں انٹرنس کے لیے اور وہاں پر گیدرنگ کے لیے, ان پر کتنا کچھ عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ SOP بالکل یعنی کہ فی الحال انٹرس تک تو ٹھیک ہے. یعنی انٹرس میں وہ لوگ ہمیں جو ہے سینیٹائزر لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹول لگا لیا, چلو ٹھیک ہو گیا, چیک کر دیا, میں یہ ٹیمپریچر چیک کر لیا, ہمارا کورونا ہے نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, چھوڑ دیا. اندر تو آپ کے سامنے سارے ایک ساتھ پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. اندر بالکل کوئی فالو نہیں کر رہا ہے SOPs. نہیں, ہوا کھانے تو نہیں آئے ہم, بس یونیورسٹی کے آن لائن ایگزامز ہو رہے تھے ان کی وجہ سے ادھر آئے ہم.
और अपनी हिफाजत कर रहे हैं इंशाल्लाह, मास्क वगैरह पहन रहे हैं, नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने हुकूमती SOP जो हैं तो मास्क पहनना और सैनिटाइज़र और ग्लव्स जो है तो ये आप उनमें से एक मास्क पहनने की रवायत को आपने बरकरार रखा हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि केसेस जो है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में जो है तो बढ़ रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपने पार्क को ही क्यों मुंतखब किया कि वहाँ पर जाया जाए और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ भी गपशप हो जाएगी और उसके अलावा थोड़ा पढ़ा भी जाएगा वहाँ पर और थोड़ी ताज़ी हवा भी हो जाएगी। बस SOPs पर हम अमल कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अमन कोरोना नहीं होगा। जो दीगर भाई जो हमारे मुतासिर हो चुके हैं इस वायरस से, ताकि आप उनको कोई ऐसा पैगाम दें, पॉजिटिव मैसेज जो हमारी आवाम के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। बस पॉजिटिव मैसेज तो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs रखे गए हैं उन पर आवाम अमल करे और ज़रूरियात के अलावा अपनी सेहत की ख्याल करे, मतलब घर से बाहर कम जाए ज़रूरियात के अलावा। यही मैसेज है। इंशाअल्लाह हम कोरोना से जल्दी छुटकारा पाएँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे मेरी तरह दीगर भी जो है तो आप भी जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप भी ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं आपने, तो आप लोगों को, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी हो चुके हैं, मेंटल डिप्रेशन का काफ़ी शिकार हो चुके हैं लोग, तो एक पढ़ी लिखी आप क्या ऐसी कोई राय देना चाहेंगे हमारे ख़ास तौर पर हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को जो तालीम में इस वक्त मसरूफ़ थे, ठीक है, जो क्लासेस ले रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे या जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में थे? यही कि हुकूमत के बनाए हुए जो SOPs हैं उन पर अमल किया जाए, एहतियात की जाए, सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल किया जाए, मास्क इस्तेमाल किया जाए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पर टिकटॉक बना रहे थे, टिकटॉक की वीडियोस काफ़ी, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, उसके अलावा ये ऐप भी काफ़ी मशहूर है। आप मुझे बताइएगा कि कोरोना के दिन है, वबा जो है तो काफ़ी ज़्यादा फैली है, काफ़ी ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में भी इसके हो चुके हैं, तो पार्क को आप तफरीह के साथ साथ अपनी जो है तो मेंटल हेल्थ के लिए भी टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं, या वैसे ही लोगों के लिए एक हंसी मजाक के लिए, या अपनी सिर्फ एक होता है दिली आरज़ू पूरी करने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली रीज़न ये है कि हम अपना एक मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आते हैं यहाँ पर। घर में रह के काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पर पार्क में आते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ठीक है। टिकटॉक पे हमारी टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो दैट्स वाई हम अपने उसको रोक तो नहीं सकते, ठीक है। तो अपने आप को सेव करके मास्क वगैरह हम पहन रहे हैं, ठीक है, तो उसके हम ज़रिए अंदर आते हैं, तो अपना बस एक दो शूट करके तो हम चले जाते हैं घर। हम ज़्यादा बाहर नहीं घूमते, बस टिकटॉक शाम के टाइम बनाते हैं इसे। SOPs की अगर बात करें हम, तो हुकूमत की जानिब से SOPs दी गई थी कि आप जब भी कभी कहीं भी पब्लिक गैदरिंग में जाएँ तो अपने मास्क, ग्लव्स वगैरह ये चीज़ें अपने साथ रखनी है और आपने पहन के रखनी है। इस हवाले से अपने पार्क में कितना कुछ लोगों को इस हवाले से इन SOP पर अमल दरामद करते हुए देखा है? पाकिस्तान में तो मैं बेसिकली बता दूं, तो पाकिस्तान में SOPs को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा इतना ज़्यादा, मतलब लोग अगर फॉलो करें तो काफ़ी ज़्यादा बचाव हो सकता है कोरोना वायरस से। बट मैं अपने ख़ुद को भी इंक्लूड करता हूँ इसमें कि हम भी इतना इस चीज़ को सेफ़ नहीं कर रहे, बट हमें करना चाहिए। मैं मैसेज देना चाहता हूँ स्पेशल जितने भी मेरे पाकिस्तानी देख रहे हैं मुझे, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को सेव करें जैसा भी हो, क्योंकि ये कोरोना वायरस सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपसे कितने और लोगों में फैल सकता है। तो हम बस ये है कि हम शाम के टाइम आते हैं तो अपनी एक दो वीडियो बना के सेपरेटली, पब्लिक प्लेस में नहीं, सेपरेट कोई लोकेशन देखते हैं, उधर हम अपनी वीडियो बना के और हम अपने घर को निकल जाते हैं। हम ज़्यादा आउटिंग नहीं करते, बस शाम के टाइम में आते हैं हम। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमें मतलब ऑनलाइन हम तैयारी नहीं कर पाते, जिस वजह से हम जो है ना इधर पार्क में आए हैं ताकि जो है ना हम सब दोस्तों के साथ मिलके पेपर की तैयारी कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से गिला भी तो किया जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से कि महज जो है तो डिग्री के हुसूल के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसी तालीम होनी चाहिए जिससे उनके मुस्तकबिल में जो है तो उनको फ़ायदा दे सके। हाँ जी, इस बात से आप कितना मुत्तफिक हैं? मैं इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना वो कोई इतनी अच्छा काम नहीं है। हमारा इतना सिस्टम अच्छा नहीं है कि हम जो है ना वो एक बेहतर तरीके से हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकें। हमारा इतने इंटरनेट ही अच्छा नहीं है कि हम जो है ना वो उस तक रसाई हासिल कर सकें। इंटरनेट भी अच्छा नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आप अपने ग्रुप्स के साथ मौजूद हैं, तो इतने वक्त में आपने कितना कुछ यहाँ पर पढ़ सके हैं? हमारा कल पेपर है साइकोलॉजी का, तो हमने काफ़ी हद तक जो है ना पढ़ लिया है, बस एक थोड़ा बहुत एक चैप्टर रह गया जिस वजह से हम वो करके अब चले जाएंगे। हुकूमत की जानिब से SOP दी गई थी गैदरिंग के लिए, तो आपने उस पर कितना कुछ अमल दरामद किया है? SOPs का ख्याल रखते हुए तभी हम जो है ना इधर काफ़ी मतलब डिस्टेंस रख के हम पढ़ रहे थे, और फिर भी हमारी कोशिश थी कि हम जो है ना वो SOPs का ख्याल रख के सैनिटाइज़र हमने रखा हुआ है, तो फिर ही हमने मतलब काफ़ी हमने ख्याल रखा है। लेकिन अभी मैंने मास्क उतारा ताकि मैं सही बोल सकूँ।
यहाँ पर इस वक्त पार्क में हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जो कि अपने बच्चे के हमरा यहाँ पर पार्क में सैर तफरीह के लिए भी आए हैं। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। जी, मोहम्मद नासिर नाम है मेरा। नासिर साहब, आप यहाँ पर अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर पार्क में मौजूद हैं। मुझे बताएं कि कोरोना की जो है तो केसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस सिलसिले में आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, आपको डर नहीं लगा कि क्या खुदा ना ख्वास्ता मुझे भी कोरोना हो सकता है, मेरी फैमिली को हो सकता है, जो है तो यहाँ पर पार्क में सैर तफरीह के लिए आप यहाँ पर आएँ? तो जी, डर तो बिल्कुल अपनी जगह पर है और वायरस भी अपनी जगह पर लाजमी है, मगर बच्चे 3 महीने से क्वारंटाइन से अंदर ही बैठे बैठे ज़्यादा उकता गए हैं। तो अपना SOP का ख्याल करते हुए मैं अपने फैमिली को लेकर आया हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, आपने अपने छोटे बच्चे को भी लेके आई हैं साथ, तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कोई डर खौफ आपने ऐसा महसूस किया हो कि हम पब्लिक गैदरिंग में जाएंगे, पब्लिक होगी वहाँ पर, न जाने कैसे कैसे लोग आएंगे, ठीक है, किसी चीज़ को टच से कर सकते हैं, कोरोना हमें लग सकता है, तो क्या कोई ऐसा डर खौफ यहाँ पर आकर आपको महसूस हुआ हो? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम निकले हैं घर में, एहतियात करके निकले हैं और एहतियात करके वापस जाके अपने आप के साफ़ सुथरा कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई बीमारी, ऐसा कोई वायरस नहीं। अच्छा, कितना कुछ ज़रूरी था कि ऐसे पार्क्स में और ऐसी ओपन एरियाज़ में, ऐसी ग्रीनरी में आना, कि ऐसे 3-4 महीने के लॉकडाउन के दौरान कि जहाँ पर आवाम जो तो बिल्कुल अपने घरों में महसूर है? और बच्चों की वजह से निकले हैं कि घर में बैठ बैठ के बच्चे बोर हो रहे हैं, उकता रहे हैं, चिड़चिड़ापन में आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने ज़रूरी समझा कि बाहर थोड़ा जाके आउटिंग करें। आवाम की अक्सरियत की राय जो है तो आपने जानी कि कोरोना की वबा के दौरान जो है तो उन्हें डरना नहीं बल्कि वाकई तौर पर इससे लड़ना है। लड़ना किस तरह है कि अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करके। नाज़रीन, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही जो है तो तफरीही वीडियोज़ के लिए पाक 47 TV की चैनल को जो सब्सक्राइब करें, उसके फेसबुक पेज को लाइक करें। अपने मेज़बान हमाद हुसैन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।